friends, so today we will start our next article of electrostatics. I hope you will like it, subscribe it and share it. तो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, forces among multiple electric charges. As you know, we have already discussed about Coulomb's law in vector form and Coulomb's law in terms of their position vectors. Coulomb's law in vector form that we have written just like this one. See, suppose I have F21 vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square into R21 cap. Either F12 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square into R12 cap unit vector. And we have also write our Coulomb's law in terms of position vector, that is F21 vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon F21 is there, then it is R2 minus R1 वेक्टर का मॉडुलस का क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर. This we have already done. Now in this case what we will do, कि how much the two charges they are exerting force on each other. Similarly you can add F12 also. Here is R1 minus R2 and here is R1 minus R2. Now what we have to do, superposition principle. What does it mean? Suppose करिए कि in place of we have this three-dimensional coordinate system. Three-dimensional coordinate system. Here is two charges. When here is Q1, then its position vector is R1. If there is another charge that is Q2, its position vector is R2. So they will exert force on each other. Suppose there is another charge that is Q3, its position vector is R3. There is another charge, suppose Qn, its position vector is Rn vector. Now what will happen कि ये तो चार्ज है, यहां पे मान लीजिए एक चार्ज है और that is Q0. Q0 that is its position vector is suppose R0 vector. R0 vector. Now suppose Q1 will exert force on Q0, Q2 also exert force on Q0, Q3 also exert force on Q0 and Qn also exert force on Q0. This charge, yes, this is a very small charge. इसके ऊपर ये सभी चार्जेस के पॉइंट चार्जेस ये सभी इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं. जब ये सभी फोर्स लगाएंगे तो यहां पर जो नेट फोर्स लगेगी दैट इज द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस. दैट इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस. तो दैट इज अवर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. मान लीजिए Q1 ने इसके ऊपर फोर्स लगाई F01, इसने लगाई F02, F03, F0n. तो बट वी गेट F1 दैट इज योर बट वी कैन से F इज इक्वल टू योर F01 plus F02 plus F03 plus 1 F0n. So first of all we will define it. Means according to superposition principle the net forces among net force acting on a given point charge. गिवन पॉइंट चार्ज कौन सा हुआ यहां पे, Q0. पॉइंट चार्ज ड्यू टू number of point charges is the around it is the sum of the individual forces acting at that point charge.
at that point charge due to all the other point charges. Due to all the other point charge. See, it is Q naught, it will exert force on this, it will also exert force on this will also. So we have a system of charges Q1, Q2, Q3 having positional vectors R1, R2, R3, so on Rn respectively. Now Q naught, it had position vector R naught. Now what is the net force? The net force is equal to F01 plus F02 plus F03 plus F04 plus so on F0n. This is our principle of superposition. मीन सभी इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, सबको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी? F01 plus F02 plus F03 plus F04 plus so on F0n. Means Q1 will exert force on this. What about F01? If I will talk about F01, then it is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 into Q naught upon R0 minus R1 का Q into R0 minus R1. This one. This is F01. If I will talk about F02, then it is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q2 Q naught आ जाएगा upon R0 minus R2. This already we have done into R0 minus R2. This if you are not understanding it, go to my previous lecture. R0 minus R2. So on. What about F0n? That is 1 upon 4 pi epsilon naught Qn Q naught upon R0 minus Rn वेक्टर का Q इंटू R0 माइनस Rn. हम सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. बट विल गॉट F. F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नॉट अपॉन R0 माइनस R1 वेक्टर का Q इंटू R0 माइनस R1 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q नॉट अपॉन R0 माइनस R2 का Q इंटू R0 माइनस R2 सॉरी दिस प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q नॉट अपॉन R0 माइनस R3 का Q इंटू R0 माइनस R3 प्लस ऑन प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn Q नॉट अपॉन R0 माइनस Rn का Q into R0 minus Rn vector. So this is the total force that will act on this charge Q naught. The total force. Now what will we do? We will use the summation also. So one thing is common here, that is 1 by 4 pi epsilon is common. And Q naught is also common, it will comes outside. F is equal to Q naught upon 4 pi epsilon naught, it is common. In all, you will got Q1 upon R0 minus R1 modulus का Q into R0 minus R1 plus Q2 upon R0 minus R2 का Q into R0 minus R2 plus on plus Q3 upon R0 minus Qn upon Rn का मॉडुलस का Q into R0 minus Rn. इस ब्रैकेट इनक्लोज हो गया. तो व्हाट इज F इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू 1 to n. समेशन लगाते हैं इसको. समेशन क्या रहेगा, Q I अपॉन R0 माइनस RI का Q इंटू R0 माइनस RI का RI. दिस इज तो इज द टोटल फोर्स दैट विल एक्ट ऑन दीज चार्जेस. तो दिस इज आवर सुपरपोजिशन principle. Now what we have to do,
दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मींस अगर क्यू नॉट चार्ज पड़ा है तो उसके ऊपर अगर और चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, सारी फोर्सेस ऐड हो जाएंगी। तो दिस इज आवर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फोर्स अमंग मल्टीपल इलेक्ट्रिक चार्जेस। नाउ यू कैन राइट इट। If you have right, then I can erase it. Okay. Now we will discuss about continuous charge distribution. Continuous charge distribution. कंटिन्यूअस चार्ज, थोड़ा मेरा स्केच खराब हो गया है ड्यू टू लॉकडाउन, खरीदने का टाइम नहीं लगा। आई विल परचेज इट। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एज यू नो कि इफ द चार्ज इज क्लोजली स्पेस टू ईच अदर, मींस देयर इज अ लॉट ऑफ चार्ज इज देयर, देन वी कैन टेक इट एज अ कंटिन्यूअस। सिंपल एग्जांपल, सपोज करिए कि हमारे जो सिर है उसके जो हेयर्स हैं, तो दे आर वी कांट काउंट देम बिकॉज दे आर इन लार्ज क्वांटिटी, तो हम उनको कंटिन्यूअस कर लेंगे, कंटिन्यूअस मान लेंगे। कंटिन्यूअस मान लेंगे, हम कहीं पे छोटा सा एक एलिमेंट मानेंगे, उसमें कितने हेयर्स हैं और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हेयर्स निकल जाएंगे। इस तरह से हमारे पास अगर चार्ज कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली में हमारा क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट है कि चार्ज इज डिस्क्रीट इन नेचर, हाउ द चार्ज इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। इफ द चार्ज इज इन मैक्रो अमाउंट, लार्ज अमाउंट में अगर होगा, तो वी कैन से a system of closely spaced electric charges forms a continuous charge distribution. If charge is closely spaced, then we can't count it. If we can't count it, we can say it is a continuous. Means at macroscopic level, we can say the charge is continuous. At macroscopic level, we can say the charge is continuous. चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सपोज करिए, तो आई विल एक्सप्लेन यू एग्जांपल कि सपोज करिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि किसी वॉल्यूम में कितना मास है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेंसिटी मास के प्रोपोर्शनल होगी, अगर वॉल्यूम मास कांस्टेंट होगा तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगी। तो हम इसको बोलते हैं वॉल्यूम डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको, वॉल्यूम डेंसिटी। लेकिन हम लिखते क्या है, इसको डेंसिटी लिखते हैं, वॉल्यूम लगाने की जरूरत नहीं। इट इज अंडरस्टूड डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। सिमिलरली वी हैव लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी, व्हाट डज इट मीन? दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी। वी हैव सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी मींस अगर मास एरिया के पास हो तो हम बोलेंगे मास पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड सरफेस डेंसिटी। देयर इज अ लीनियर डेंसिटी, देयर इज अ वॉल्यूम डेंसिटी। इफ द मास इज ऑफ ऑन a length, then that is called linear density. If that is on area, that is called surface density. Then there is the volume density, the mass per unit volume. Similarly, there are three types of density in when the mass is distributed on a। अगर हम मास को किसी लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे कुछ मेरे पास ये एक लाइन है या कोई रिंग है, उसके ऊपर मैंने कोई लेंथ है, रॉड है, मैंने उसके ऊपर चार्ज को यूनिफॉर्मली क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तब लाइन के ऊपर होगा तो हम नाम क्या लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। दिस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए लाइन, ऑन ए रिंग। We can see the linear charge density and it is denoted with lambda। किस नोट करेंगे इसको, लैम्डा से। लैम्डा से नोट करेंगे, लैम्डा से हम वेवलेंथ को भी नोट करते हैं। मींस व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी? द चार्ज पर यूनिट लेंथ।
एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, तो हम लैम्डा को कैसे डिफाइन करते हैं। मान लीजिए इसके पास टोटल चार्ज Q है और इसका लेंथ L है, लेंथ कितना है इसका L है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, बट वी कैन से इट एज ए लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, हम इससे क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। तो इसका SI यूनिट क्या बन जाएगा, कूलम अपॉन मीटर, दैट इज कूलम मीटर इनवर्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लैम्डा, कूलम मीटर इनवर्स, दैट इज यूनिट ऑफ लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा, चार्ज पर यूनिट। अगर किसी लेंथ के ऊपर चार्ज होगा तो वी कैन से इट एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे इसको। तो वी कैन आल्सो से, सपोज करिए मेरे पास डेंसिटी ऑफ बकेट ऑफ वाटर, मींस पानी भरा हुआ है बकेट में, तो उसकी डेंसिटी है 10⁻³ किलोग्राम मीटर -3। अब मैंने उसमें से एक बूंद निकाल ली, एक ड्रॉप निकाल ली, तो उस ड्रॉप की डेंसिटी क्या होगी, दैट इज आल्सो 10⁻³ किलोग्राम मीटर -3। हाउ इज इट पॉसिबल। अगर हम ड्रॉप लेंगे तो उसका मास भी कम होगा, वॉल्यूम भी कम होगा, मास भी कम होगा। जैसे सपोज करिए मेरे पास डेंसिटी रो है, रो इज इक्वल टू मान ली 20/4 है या 20/5 है, तो कितना आ गया, 4 आ गया। अब क्या हो गया कि 20 से ये 16 हो गई और ये 4 हो गया, तो कितनी हो गई, फिर से 4 हो गई, ये 8 हो गई और 2 हो गई, फिर से कितना आ गया, 4 आ गया। बोलने का मतलब क्या हुआ कि अब जो डेंसिटी होती है वो किसके साथ, मास और वॉल्यूम के साथ रिलेटेड होती है। ऐसे चार्ज डेंसिटी में भी क्या होगा, Q और L के ऊपर डिपेंड होगी। अगर हम चार्ज को स्मॉल ले लेंगे, स्मॉल यहां पे थोड़ा सा चार्ज लेंगे, तो उसकी डेंसिटी भी सेम होगी और उसकी लेंथ भी कम हो जाएगी, चार्ज भी कम हो जाएगा, तो डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर अभी भी समझ नहीं आया, मान लीजिए हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन बनाया, उसमें हमने शुगर ऐड की। अब शुगर को ढंग से घोल दिया, बिल्कुल ढंग से घोल दिया कि उसमें कुछ नहीं बचना चाहिए। नाउ यू विल ड्रिंक द स्पून ऑफ दैट solution, you will find and after that a spoon of that and after that you will drink all the glass. What will happen in both the cases, the taste is same. Why? Because the density is same, concentration is same. लेकिन अगर आपने शुगर ली और उसमें ग्लास में घोल दी और उसको हिला दिया, सॉरी हिलाया नहीं और पहले उसको पी लिया, तो आपको कुछ और टेस्ट आएगा, बाद में कुछ और टेस्ट आएगा। क्यों, क्योंकि आपने उसको ढंग से घोला नहीं, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या नहीं हुई, इसकी यूनिफॉर्म नहीं हुई। इस तरह से चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम इस यहाँ पे एक स्मॉल चार्ज ले लेंगे dq, तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, dl हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे एक स्मॉल चार्ज ले लिया dq मीन स्मॉल चार्ज, d फॉर, सी आई हैव गिवन यू d, हाउ मेनी d's आर देयर, सी दिस इज curly small d, then this is some bigger d, then this is bigger d. Okay, small change, then some bigger change, delta, some bigger change. So what we can say, these are the changes. So what is a change? See, dq, it is a small quantity of charge. If it is a small quantity of charge, then it is we are taking the length is equal to dl, because dl length के पास dq होगा। तो what about lambda? Lambda हो जाएगा dq divided by dl हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर q कम हो गया, dq हो गया, तो l भी कम हो गया और क्या रह गया, सेम रह गया। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे सपोज करिए मैंने बोला कि आपकी डेंसिटी है, मान लो आपका चार्ज है 20, आपका एल है 5, तो कितना रह गया, 4। अब आपका जो ये जो है 20 की जगह हो गया 2, तो हम इसको किससे डिवाइड, 0.5 से डिवाइड, अगेन यू विल गॉट हाउ मच, 4, मींस आपका डीएल कितना रह गया, 0.5, डीक्यू कितना हो गया, 2 हो गया, दिस इज 4। तो व्हाट वी कैन से, लैम्डा इज आल्सो रिटन एज डीक्यू अपॉन डीएल, डीक्यू अपॉन डीएल। व्हाट इज डीक्यू इज रिटन एज, दैट इज लैम्डा इनटू डीएल आल्सो, लैम्डा इनटू dl also. So this is your dq. This is your linear charge density. Now we will discuss about, if you want to note, then note it. Now we will discuss about surface charge density. Surface charge density. As the name shows, surface के ऊपर मीन्स अब प्लेन आ गया, प्लेन के ऊपर जो चार्ज हो गया, जिसमें मान मेरे पास ये मैटर शीट है, कोई भी शीट है मैटर की, इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली क्या कर दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चार्ज इज यूनिफॉर्म, वी कांट काउंट इट बिकॉज इट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, दिस इज वेरी क्लोज, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। हमने इसको क्या मान लिया, कंटिन्यूअस मान लिया। अगर हम इसको कंटिन्यूअस मान लिया, तो चार्ज ऑन ए सरफेस मींस व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज नोट टू बी सिग्मा।
सिग्मा से हम इसको नोट करेंगे, किससे करेंगे नोट? सिग्मा से। सिग्मा, सिग्मा वर्ड क्या बोलेंगे इसको? सिग्मा बोलेंगे, सिग्मा। व्हाट इज सिग्मा? इक्वल टू दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया. So this is, you can define it, the surface charge density is defined as the charge per unit area, means charge per unit area is called surface charge density. Suppose it has charge q and this have area a, then is q upon a. Okay, if suppose here is, I will take small area, suppose I will take here small area, that is ds ले लेता हूँ. What is the charge in this? That is dq. So what we can write also, sigma is equal to dq upon ds also. So we can write dq is equal to sigma into ds also. Sigma into ds also. Now we will define volume charge density. Which one? Volume charge density. It is noted by rho. As you know density के लिए rho होता है, rho से हम इसको डिनोट करेंगे. तो रो किसके बराबर होगा? अब मान लीजिए कि किसी वॉल्यूम में, मान लो हमारे पास ये वॉल्यूम रख लीजिए, जैसे एक स्फीयर होता है, या चलो मैं ऐसे वॉल्यूम ले लेता हूँ, नो प्रॉब्लम, ये ले लिया वॉल्यूम हमने, इसके पास चार्ज ली यूनिफॉर्मली, क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके अंदर. तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड इट, बट वी कैन सी इट एज अ टोटल चार्ज q and its volume is v. तो व्हाट इज द सरफेस चार्ज, दिस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? दैट इज इक्वल टू q upon v. व्हाट इज मीन? इट इज डिफाइंड एज charge per unit volume. You can write it charge per unit volume. तो charge per unit, what about the unit of this? इसका यूनिट क्या होगा? कूलम मीटर माइनस 2 होगा ऐसा यूनिट, और इसका क्या आ जाएगा? कूलम मीटर माइनस 3 आ जाएगा. अब इसमें Q, we can say I will take a small volume. If I will take a small volume, it is charge dq. What about its volume? That is dv. So what is rho equal to? That is dq upon dv. I can write it as dq is equal to rho dv. This I can write. This is your volume charge density. There is a surface charge density. If the charge is distributed on a sheet, metal sheet, then we can say it as surface charge density. If the charge is distributed on a sphere, we can say it as which one? Volume charge distribution. If the charge is distributed on a inside the sphere also, if the charge is distributed on a ring or a length or any length rod, we can say that is as a linear charge density. There are three types of density: linear charge density, surface charge density, and the volume charge density. Now we have find how much is the force acting between 2 point charges. If there are 2 point charges, then what is the force acting between 2 point charges? That we can calculate simply. We can say the force between the 2 point charges, that is equal to F is equal to Q1 Q2 K लगा लीजिए constant upon R square into R cap, whatever this. This is the force between 2 point charges. Now what we have to do? We have to find the force due to continuous distribution of charge. Force due to continuous distribution of charge. देखिए, force due to continuous distribution of charge. मान लीजिए हमारे पास कोई लेंथ है, दिस इज अवर एनी लेंथ, इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है? चार्ज पड़ा है. दिस इज द चार्ज दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस लेंथ. पहले हम किसकी बात करेंगे? linear distribution of charge की बात करेंगे. linearly charge distributed, one dimensional बात करेंगे. when the charge is distributed on a length, on a line, ring, we can say this is a linear charge distribution. Now what will happen? Suppose I will place here a charge, another charge, suppose that is a very small quantity, हम इसको टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं. It is a very small, actually the smallest possible charge in nature, that the charge on electron. So basically we have to put here the charge on electron. It is a point charge. Point means इसका dimension point के बराबर है. तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा. मान लीजिए ये इस चार्ज ने यहाँ पे क्या लगाई?
फोर्स लगाई तो इधर को लगेगी। अगर ये चार्ज लगाएगा तो कहाँ को लगेगी, इस तरफ को लगेगी, ऑब्वियस इस तरफ को लगेगी। लेकिन बेटा इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट इधर को होगा और एक कंपोनेंट इधर को होगा। अब सिमिलरली इसके भी कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर को होगा और एक कंपोनेंट, तो इधर वाली फोर्स और इधर वाली फोर्स आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। इसका मतलब जो हमारे पास फोर्स बचेगी वो इस यहां पे इस तरफ को बचेगी, टुवर्ड दिस साइड इज द फोर्स, टुवर्ड दिस साइड इज द फोर्स। कैन आई इरेज इट? ओके, so what will happen, what I do, I have placed here the charge q naught. Now what will happen here कि q naught charge is placed here. Now what I will do, I will take here small element having length is equal to dl. स्मॉल एलिमेंट ले लिया हमने, इसमें से स्मॉल एलिमेंट हमें नहीं पता कितना है, ये dl बोलते हैं। जब हम एक्चुअली में तीन तरह के एलिमेंट्स होंगे, एक लाइन एलिमेंट होगा, एक एरिया एलिमेंट होगा और एक वॉल्यूम एलिमेंट होगा। मींस हमने जैसे सपोज करिए मेरे पास एक पंपकिन है, मैंने इसमें से थोड़ा सा क्या किया, पीस काट लिया, तो क्या बन गया वो, दैट इज कॉल्ड डीबी, वॉल्यूम एलिमेंट होगा। मेरे पास एक लाइन है, मैंने इसमें थोड़ी सी काट ली, दैट इज द लाइन एलिमेंट। मेरे पास एरिया है, मैंने थोड़ा सा एरिया इसमें से काट लिया, दैट इज कॉल्ड डीएस, दिस इज कॉल्ड डीएल। तो देयर इज अ डीएल, डीएस एंड डीवी। डीवी मीन्स वॉल्यूम एलिमेंट, DL मीन्स लाइन एलिमेंट, DS मीन्स एरिया एलिमेंट या एरिया एलिमेंट हम इसको बोलेंगे। तो इस तरह से हमने यहां पे स्मॉल एलिमेंट ले लिया। अब ये स्मॉल एलिमेंट इस चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा, इट विल एक्सर्ट फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स कहां को लगेगी, टुवर्ड दिस साइड। बट इफ दिस स्मॉल एलिमेंट विल एक्सर्ट फोर्स ऑन दिस, दैट इज DF। हम उसको स्मॉल फोर्स है तो हम इसका नाम क्या रखेंगे, DF रखेंगे। भाई DF मीन स्मॉल फोर्स, बिकॉज हमने एक्चुअली हम करने क्या जा रहे हैं, हम इसके सारे अलग अलग नहीं निकाल सकते क्योंकि अलग अलग हमें पता ही नहीं है इसके बारे में, हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या मेथड ढूंढा कि हमने जस्ट सपोज करिए मेरे पास ये एक ब्लॉक है। अब हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर, यू विल से 4। नाउ यू विल से सर देयर इज 8। नाउ you will say sir there is 12, but I will do now, see this just like I will do, blocks to hai, can you count these blocks now? We can't count because this is in continuous now, है discrete पर है continuous। तो यहां पे हमारा समेशन क्या हो गया, फेल हो गया। जब समेशन फेल हो गया तो we have to go for integration। हम लोग एक स्मॉल मानेंगे कि एक स्मॉल मान लिया, फिर हम इसका एरिया देख लेंगे इसका कितना डेफिनेट ये है, हम निकाल लेंगे हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर। कैसे हम लोग उसको कर देंगे, इंटीग्रेशन। ये एस फॉर समेशन, एस फॉर इंटीग्रेशन, दिस इज इंटीग्रेशन। जहां समेशन फेल होता है वहां क्या करनी पड़ती है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सिंबल यही होता है, एस फॉर समेशन, एस ही होता है ये इंटीग्रेशन। समेशन जहां समेशन नहीं होगा वहां पे क्या होगी, इंटीग्रेशन होगी। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल के कारण निकाल लेंगे, स्मॉल एलिमेंट के कारण कितनी फोर्स है, DF है, हम DF निकालेंगे और DF का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी। तो हमें पता है कि dq is equal to lambda into dl. We have already discussed this. Lambda is equal to dq upon dl. This we have already discussed. It has charge is equal to dq. Then what about its density? Density is equal to dq upon dl. We can say dq is equal to lambda into dl. What about this small force? So dF is equal to, anyone who will told me, 1 upon 4 pi epsilon naught. See, dq into q naught divided by this distance is r, or this toward this side the force is r cap. So but we can say r square into r cap. R square into r cap. Now what we will do, if we find the total force, what we have to do, we have to integrate df. हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी df की। तो f किसके बराबर आ जाएगा, 1 upon 4 pi epsilon naught dq into q naught upon r square into r cap और इसका इंटीग्रेशन। आपको पता है इंटीग्रेशन से कांस्टेंट क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो आपका q naught भी कांस्टेंट, इट कम्स आउटसाइड, 4 pi epsilon naught integration, what is dq, that is lambda into dl upon r square into
r cap. This is the force. This is the force. This integration is called line integration. यहां पे हम लोग कई बार L भी लिख देते हैं, हम यहां L भी लिखते हैं अगर लाइन इंटीग्रेशन हो तो lambda dl upon r square into r cap. This is the force that is exerted by this line, this continuous distribution of charge at this point q naught. But here there is a problem. There is integration that will not solved. Now we have to think another law. Coulomb's law not applicable to solve this continuous charge distribution. Then we have to go for Gauss law. When we go for Gauss law, then we will discuss this how it will open. Okay, means आपका कूलम्स लॉ इसके एप्लीकेबल नहीं है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? गॉस लॉ में जाना पड़ेगा. तो हम गॉस लॉ करेंगे तो इसको क्या करेंगे? वहां पे हम लोग इसका एप्लीकेशन करेंगे और इसको निकालेंगे. सिमिलरली वी विल डिस्कस अबाउट नाउ सरफेस distribution of charge. We will discuss about now surface distribution of charge. तो सरफेस की बात अगर हो रही है, थोड़ा मैं एक पिछले वाले केस में बताना चाहूंगा. अगर चार्ज रिंग के ऊपर होगा, मान लीजिए रिंग के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका रेडियस r होगा. बट अबाउट इट डेंसिटी दैट इज चार्ज इज q अपॉन 2 पाई r. लेंथ कितनी है? 2 पाई r. तो ये q अपॉन 2 पाई r कूलम मीटर माइनस 1 होगी. द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रिंग. दिस इज रिंग. नाउ सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए सरफेस. सी दिस इज द सरफेस. चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस. Similar case, but about I will take here small area element, but that is called ds. What that called? ds. Having charge is equal to dq. How much charge it has? dq. Now, if it has dq, then suppose here I have to find out the force. Then their force is df. Toward this side, here I have to place q naught. Here is we can say r cap is the unit vector. This is the df, small amount of force. But about density, sigma is equal to dq divided by ds. What is dq equal to? Sigma into ds. This question number first. Now, but about the force, here is element is ds now. Because एरिया का एलिमेंट एरिया निकलेगा, वॉल्यूम का एलिमेंट वॉल्यूम ही निकलेगा, लाइन का एलिमेंट लाइन, तो एरिया एलिमेंट लेंगे. इसके पास dq है तो मेरे पास डेंसिटी होगी. अब डेंसिटी होगी तो कैन आई राइट फोर्स df. Similar case in the previous example, 1 upon 4 pi epsilon naught q naught dq upon r square into r cap. What we have to do? I have to integrate it to find total force df. But we have integration से constant क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे. q naught upon this come outside, अंदर क्या बच गया? dq upon r square into r cap. We can say this is equal to 4 pi epsilon naught. What is dq? That is sigma into ds upon r square into r cap. Again there is the problem. What is the problem now? You can judge the problem. This integration will not open. This is the surface integration. कई बार ऐसे दो लगा देते हैं हम लोग, लेकिन दो नहीं लगाएंगे हम. यहाँ के लिख देंगे ऐसे लिख देंगे. क्या लिख देंगे? ऐसे लिख देंगे. सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे इसके. तो दिस इज योर फोर्स. Now, if the charge is distributed on any area means मान लो मेरे पास एक स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर ही चार्ज है, सॉरी जो जैसे वॉलीबॉल हॉलो स्फीयर है उसके ऊपर ही चार्ज होगा. क्या होगा? उसके ऊपर ही चार्ज होगा. अगर ऊपर ही चार्ज होगा, इसका रेडियस मान लीजिए r है. व्हाट अबाउट इट्स डेंसिटी? सिग्मा इज इक्वल टू ऊपर ही है, सरफेस के ऊपर है सिर्फ चार्ज. देन इट इज इक्वल टू दिस वॉलीबॉल हॉलो स्फीयर. बिकॉज सिग्मा इज इक्वल टू q upon 4 pi r square होगा. भाई because the area of the sphere is 4 pi r square. So its unit is coulomb meter minus 2 is its unit. It is the sigma. That is sigma. Now we'll discuss the volume charge distribution. Volume charge distribution. Volume charge distribution. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? चार्ज इज ऑन ए वॉल्यूम. मान लो मैंने ऐसे कोई ये ले लिया. अब ये मेरे पास कोई वॉल्यूम है, इसके ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, अंदर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है?
डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने यहाँ पे क्या लेना है, एक स्मॉल वॉल्यूम क्या लेना, एलिमेंट लेना। मान लो मैंने ये वॉल्यूम एलिमेंट, सपोज दिस इज कॉल्ड dv, व्हाट इज द चार्ज ऑन इट, दैट इज dq। यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, q नॉट, ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स, कहाँ को लगाएगा, बाहर को लगाएगा, तो दिस इज df, दिस इज df, दिस इज योर r, if this is your r then there is r cap is the unit vector in this direction. Now what will what is rho equal to, in this case rho is equal to dq upon dv, then what is dq equal to, that is rho into dv, rho into dv. Now what is the force, df equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, you will got q naught dq upon r square into r, okay. But what is f equal to, I can write directly now, I think q naught upon 4 pi epsilon naught इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में 3 लगेंगी लाइन, इसके लिए जैसे लाइन के लिए 1 लगती है, 2 लगती हैं और 3 पहले लगाते थे, अब लगाते हैं एक, हम लोग क्या लगाते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल में भी लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा dv, सॉरी रो dv अपॉन r square into r cap. तो दिस इज द फोर्स इन केस ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज ये द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्फीयर ऑल, अंदर भी होगा बाहर भी होगा, सब जगह होगा, स्फीयर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बट अबाउट रो दैट इज इक्वल टू q upon 4 pi 3 pi r cube, because the volume of the sphere is 4 by 3 pi r cube, coulomb meter minus 3. So this is your linear charge distribution, surface charge distribution and volume charge distribution, you can note it. Now we will do a simple numerical on this. What charge would be required to electrify a sphere of radius 25 centimeter, 25 centimeter, so as to get a surface charge density of 3 by pi कूलम मीटर माइनस 2। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्या देखना होता है आपको, गिवन क्या, आपको रेडियस दिया हुआ स्फीयर का सॉल्यूशन, गिवन में क्या है, रेडियस है, रेडियस कितना है 25 सेंटीमीटर। इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, SI सिस्टम में, बिकॉज इट इज इन CGS सिस्टम। बट हाउ इट विल बी चेंज, 25 into 10 power minus 2 meter, it will change. Now what is sigma, that is given to you 3 upon pi coulomb meter minus 2, this is given to you. Now what is sigma is equal to charge per unit area, means charge per unit area that is given to you, that is 4 pi r square, because it is a sphere, charge is distributed on the sphere. Then what will you got, r square is equal to q upon r square is given to you, we have to find out the charge q is equal to 4 pi r square, q is equal to 4 pi r square into sigma, what is 4 into 3 point, sorry pi से pi कट जाएगा, यहाँ पर हमारे पास r square that is 25 into 10 power minus 2 का whole square into sigma, that is 3 upon pi, pi is cancel with pi, and when we solve it we will got 0.75 coulomb, 0.75 coulomb. So this type of example you have to do from your book, at least 10 example, 10 numericals you have to do. So okay, thanks, have a nice day.